Yes. So now is it visible to all of you? I hope. Na? Yes, sir. Okay. In last class we had studied about the ledger. I hope you all have understood how to prepare ledger. लेजर कैसे बनाया जाता है आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कि जब कंपाउंड जर्नल एंट्री दिया होता है ना, तो हम कैसे लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जर्नल एंट्री में कल की तरह स्पेसिमेन में यहाँ लिख रहा हूँ एंड आप भी उसके साथ लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस इज व्हाट, सपोज दैट कि 20,000 है, हमने सेल किया। ठीक, सेकेंड कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स 19,000, 1,000 and 20,000, right? Now third, purchase account debit to cash and to Aditi. So purchase for cash 20,000 from Aditi on credit for rupees 30,000 and total purchase is 50,000. Now fourth, salary account debit, wages account debit to cash account. Salaries rupees 3,000, wages rupees 2,000, total cash paid 5,000. And Sir, your voice is not coming clear. furniture account debit to furniture mart account and to cash 20,000, 500, 20,500. So okay students, you can see on your screen these are the some specimen of the journal entry. Just I have taken the journal entry from my own, and now with the help of this journal entry we have to prepare ledger. Okay, as you know, ledger is a classified and permanent record of each and every unique item like cash ledger we have to prepare, then sales, then discount allowed, then purchase, then aditi, then salary, then wages, then furniture and furniture mart. So each individual account we have to prepare separately. But here's I have written compound entry. You can see compound entry means sometimes more than one debit and one credit, more than one credit and one debit, maybe, and more than one debit and more than one credit also there may be. So students, so these are the some compound entry, and now how to pass the entries ledger. I will teach you today. So first of all, I am going to start cash account. Okay. So बेटा कैश अकाउंट में बनाने जा रहा हूँ, तो कैश अकाउंट मीन्स कैश का लेजर बनेगा और यू विल सी
Okay, so prepare along with me, you all people. Okay, so here just T shape, just like a T shape. Now you will divide for the amount and then J, particular, and then date. So here again the same column would be repeated. Okay. So you will write here date, particulars, JF, rupees, again date, particulars, JF, rupees. So student, left hand side we will write debit, you know, and right hand side credit. So these are the format of ledger, you know already, I have taught yesterday. So बेटा अब आप लोग करेंगे क्या? देखो कैश का लेजर हम बनाने जा रहे हैं, तो आपको ढूंढना है कि कैश जर्नल एंट्री में कहाँ कहाँ दिया हुआ है ना? सो यू विल सी कैश इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट इज डेबिट. सो कैश के लेजर में कैश जब डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन उसका जो करस्पॉन्डिंग सेल्स अकाउंट 20,000 ये वाला लिखेंगे. यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. ओके, तो 20,000 से तो सेल्स भी 20,000 ही होना होगा. फर्स्ट एंट्री तो हो गया. सेकंड में देखो फिर से कैश है डेबिट, लेकिन डिस्काउंट भी डेबिट है और सेल्स, तो डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्रेडिट आइटम होगा और क्रेडिट का डेबिट. डेबिट का डेबिट नहीं होगा, याद रखना. सो यहाँ पर कैश कितने रुपए से डेबिट है बेटा? आप देखो सभी लोग, यहाँ पर 19,000 से कैश डेबिट है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग आइटम होगा वो क्या होगा? सेल्स वाला में होगा, लेकिन सेल्स 20,000 दिया है. तो 20 क्यों दिया है? क्योंकि आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं. तो डेबिट 19 और ये 20 क्यों है? क्योंकि 1,000 रुपया डिस्काउंट का इसके अंदर इंक्लूड है. तो सेल्स में कैश का कितना पैसा इंक्लूड होगा? 19,000. तो हम लोग कैश डेबिट है तो डेबिट साइड में ही लिखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आइटम को. कैश से करस्पॉन्डिंग क्या है? सेल्स यानी क्रेडिट. सो हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 19,000, तो हम 19,000 लिखेंगे. राइट. सो समझ में आ गया होगा कि कैश 19 है तो 19,000 जाएगा कैश अकाउंट में, क्योंकि सेल्स 20,000 जो दिया है वो डिस्काउंट को जोड़ करके है. तो हमें सिर्फ कैश अकाउंट का पैसा लिखना है. राइट. अब दूसरा फिर देखते हैं. तो फिर कैश देखो तीसरे वाले में क्या है? क्रेडिट है. तो इस क्रेडिट का जो करस्पॉन्डिंग आइटम होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा. सो डेबिट में परचेज है 50,000 और कैश क्रेडिट है. तो क्रेडिट है तो पहली बात की हम उस साइड लिखेंगे. तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे बाय परचेज. ठीक है, ये परचेज क्या बता रहा है? 50,000 रुपया जो दिया है, इसमें कैश 20,000 का है और 30,000 रुपए का उधार खरीदा अदिति से. तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं. तो हमें सिर्फ कैश पे फोकस करना है. तो कैश कितने से? 20. तो इस 50,000 में 20,000 कैश का है. सो 50,000 नहीं लिखेंगे परचेज में, यहाँ क्या कितना लिखेंगे? 20,000 रुपये लिखेंगे, क्योंकि हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कैश. तो कैश कितने से है? तुम्हारा कैश है 20,000 रुपए से. ठीक है, तो 20,000 कैश वाला पैसा लिखेंगे. तो अब इसके बाद आते हैं फिर से. तो अब देखो कैश यहाँ क्या है? क्रेडिट है 5,000. तो क्रेडिट का डेबिट होता है तो ये भी होगा और ये भी होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला करके 5,000 रुपया बनेगा, है ना? तो इसलिए चूंकि कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट और बाय वेजेस अकाउंट. सो 3,000 एंड 2,000, तो 3,000 और 2,000. राइट. अब कैश कहाँ है?
अब कैश देखो यहाँ है 500 रुपीज है ना, तो यहाँ 500 रुपये क्रेडिट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आइटम डेबिट क्या होगा, फर्नीचर होगा। तो फर्नीचर डेबिट 20,500 से, क्योंकि वो 20,000 का फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर मार्ट से उधार। सो हमें कैश का पैसा सिर्फ लिखना है, तो कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर फिफ्थ वाले पे बाय फर्नीचर और 500, ठीक है। सो अब ये देखो हमारा कैश का लेजर बन गया। तो जस्ट आई वांट टू आस्क फ्रॉम, चलो ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन है यहाँ पर, दृष्टि सिंह, दृष्टि सिंह आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बेटा, आप बताओ कि कैश का लेजर क्लियर हुआ कैसे बना, हाँ सर। कंपाउंड एंट्री। और कोई ऐसा है जिसको कंपाउंड एंट्री नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि भी बहुत सारा है, कैश का सिर्फ मैंने बनाया, अब मैं दूसरा बनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। जस्ट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर नाउ सेल्स अकाउंट, ओके। नोट सेल्स account. So I am not going to writing again date particular, just I will draw the format, because you know कि the same amount will be same items and name would be put here. Okay. So बेटा सेल्स अब ढूंढो कहाँ है, तो सेल्स देखो पहले वाले में क्रेडिट है 20,000 से, क्रेडिट किस साइड है, इस साइड है। सो क्रेडिट का करस्पॉन्डिंग आइटम क्या होगा, डेबिट होगा, ये होगा हमारा, तो लिखेंगे बाई By cash account. कैश, क्योंकि इस साइड हम लोग बाई वर्ड यूज करते हैं, तो 20,000। 20,000. जो भी चलता है कि क्या हुआ, जैसे सेल तो कैश सेल किया है ना, जैसे यहाँ कैश अकाउंट में है, सेल जितना कैश कर रहे हैं वो है, जितना हमने कैश परचेस किया, कैश सैलरी वेजेस दिया, फर्नीचर खरीदा, वो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन है। ठीक इसी तरह सेल्स क्या है कि कैश सेल किया है, इसलिए उसमें आया। अब यहाँ देखो बेटा दूसरा वाला, दूसरे वाले में सेल्स कितना है 20,000 है ना, तो 20,000 ये क्रेडिट का जो करस्पॉन्डिंग आइटम होगा वो क्या होगा, ये दोनों को मिला करके होगा, है ना। तो 19 और 1,000, तो क्या क्या है, कैश और डिस्काउंट। तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड। So cash है 19,000 और डिस्काउंट अलाउड 1,000। डन, ठीक है। कैश आपका 19,000 और डिस्काउंट अलाउड 1,000 हमने लिखा, क्योंकि सेल्स 20,000 है, तो 20,000 ही आना चाहिए। आप चेक करोगे यहाँ पर दोनों को मिलाकर 20,000 रुपये होगा। इसका मतलब अगर से हमारा सेल्स क्रेडिट है 20,000 रुपए से, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में 20,000 आना चाहिए। कहाँ से आ रहा है, तो इन डेबिट वाले आइटम्स को मिला करके। अब आते हैं सेल्स, और कहीं है नहीं है, तो बस यहाँ सेल्स खत्म हो गया, तो अब सेल्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, मान लो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाते हैं। सो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अब आप लोग देखोगे कि कहाँ कहाँ दिया, सेकेंड ट्रांजेक्शन में दिया है डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 रुपए से। सो डिस्काउंट का जो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेबिट है तो इसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट यानी सेल्स होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू, सेकेंड वाले में है टू सेल्स अकाउंट 1,000। डन। फिर डिस्काउंट अलाउड कहीं है, अब कहीं डिस्काउंट नहीं है, तो बस एक ही है, तो ये खत्म हो गया।
ये आपका डिस्काउंट अकाउंट हो गया। ठीक है, चलो, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में सबको आ रहा होगा कि कैसे हुआ, है ना। तो अब हम Yes, sir. और भी लेजर हैं वो भी बता देते हैं। जैसे अभी तक कितना बना, कैश का बना, सेल्स का बना, डिस्काउंट अलाउड का। अब आएंगे हम लोग परचेस पे। तो हम ऊपर पे ये इमेज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते थे। देखो, अब हम परचेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आप देखो परचेस कहाँ है, थर्ड ट्रांजैक्शन में परचेस डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश और अदिति दोनों लिखेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर के पैसा आया होगा। Sir. सर आवाज स्क्रीन नहीं शो कर रहा। Yes, sir. Sir. सर लीव कर दिए क्लास। मानस ऑनलाइन होना इसके बाद। Hello students, I think due to network problem, it was disconnected.
मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर अभी? Yes, sir. यस सर। एक्चुअली नेट इंटरनेट ही खत्म हो गया, अभी मैं दूसरे से सर आ रही है। हाँ, बस 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। हाँ, now is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I Yes, was okay, very good, Mutan. So I was teaching Aditi's account, na? Now look. $30,000 से क्रेडिट है। सो अदिति के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे और किस डेट को? थर्ड वाला है, बाई परचेज अकाउंट बाई ₹30,000। ठीक है, सो अदिति's अकाउंट में आ गया 30,000। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे बनना है। अब ठीक इसी तरह सैलरीज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फर्नीचर्स अकाउंट एंड फर्नीचर मार्ट्स अकाउंट बनाने हैं हमें। सो नाउ आई एम preparing here one by one. Just take the screenshot of it. I think beta previous cash ledger वगैरह you all have taken the screenshot ना? Yes, sir. Okay, now take the screenshot of this also. हो गया सर। Now salaries account I am going to prepare. Okay, so salaries account में आप देखो क्या है, सैलरी डेबिट है। सो डेबिट साइड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? डेबिट जो सैलरी है वो किससे रिलेटेड है? कैश से। सो लिखेंगे टू कैश, इट मींस कि हमने सैलरी कैश से पेमेंट किया। हाउ मच? 3,000। देन आफ्टर आपको वेजेस अकाउंट बनाने हैं, तो आप वेजेस अकाउंट बनाएंगे। तो वेजेस भी आप देखो डेबिट होगा, और डेबिट में आप तो कैश लिखोगे क्योंकि ये भी पैसा तुम्हारा कैश से ही रिलेटेड है। तो डेबिट कितने हैं वेजेस? 2,000 से, तो आप 2,000 लिखेंगे। डन हो गया। अब इसके बाद हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। खत्म हो गया तो फर्नीचर पे आते हैं। ओके, सो बेटा आप देखो फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है यहाँ पे? फिफ्थ पे है डेबिट। ठीक है, वेजेस आपका ये दोनों फोर्थ पे था, ये फिफ्थ पे है। फर्नीचर डेबिट है 20,500 से। सो डेबिट का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसका भी क्रेडिट होगा, इसका भी क्रेडिट होगा। सो लिखेंगे टू फर्नीचर मार्ट एंड टू कैश। सो फर्नीचर मार्ट में कितना है? 20,000 और यहाँ 500। सो आपका बेटा देखो फर्नीचर अकाउंट भी बन गया। अब लास्ट बचा है फर्नीचर मार्ट, इसको भी मैं ऊपर बना ही दे रहा हूँ।
ठीक। सो आप देखो फर्नीचर मार्ट में क्या है, फर्नीचर मार्ट क्रेडिट है 20,000 से। इसका मतलब आपने जो फर्नीचर खरीदा है वो फर्नीचर मार्ट एक दुकान का नाम है, उससे आपने 20,000 में उधार खरीदा है, तो फर्नीचर मार्ट क्रेडिट है। सो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि 500 रुपये जो दिया गया है वो किसी एक्सपेंसेस का दिया गया होगा, ठीक है। सो बाय फर्नीचर 20,000, क्योंकि आप इसमें 20 है और ये 500 इसका इंक्लूड है, तो हम लोग सिर्फ फर्नीचर मार्ट वाला पैसा लिखेंगे यहाँ, ठीक है। सो डन। सो आप लोगों को आज मैंने कंपाउंड एंट्री भी सिखा दिया, अब सिर्फ बचा इसका बैलेंस बताना। सो बेटा बैलेंस हम लोग पढ़ेंगे, अब उसके लिए भी टाइम लगेगा, तो बैलेंस हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। आज आप लोग जितनी भी किताब में आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल व्हाटएवर जो प्रैक्टिस से दिया हो एक्सरसाइज से, आप लोग सिर्फ जनरल एंट्री पास करो और उसका लेजर बनाओ, और नीचे 1-2 लाइन हर लेजर में छोड़ दोगे बैलेंसिंग के लिए। जब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो आप लोग उसी में सिर्फ बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके हाँ सर। ओके। सो वेट, जस्ट आई नीड टू, यस, 1 मिनट।